Today in this lecture, we will see the coordinate systems. The coordinate system, which are very important in order to understand the electromagnetic theory. Coordinate system. And there are three kinds of coordinate system which we have to study basically. The very first is Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. In Cartesian coordinate system, there are three axes x, y and z respectively. So there are three axes, and whatever we are talking about, we have to talk about in terms of x, y, z only. Now these three axes are basically perpendicular to each other like this. This is nothing but the x axis, this is nothing but y axis, and this is the z axis. Each axis has a unit vector along it. In x axis there is a unit vector along x axis, it is called ax. Along the y axis there is a unit vector called ay. Similarly, the unit vector along z axis is called az. Okay? These unit vector can also be represented in terms of I, j and k, no issue. So these three unit vectors and these three axes are representing the Cartesian coordinate system. Now the thing is, how can we represent the Cartesian differential length vector dl, which is also called differential length in terms of Cartesian coordinate system. So it is represented like dx ax plus dy ay plus dz az is equals to dl. तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको हम लिखते हैं dl इज इक्वल्स टू dx ax प्लस dy ay प्लस dz az. ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आगे चलते हैं. ये जो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर है हमारा, ये हो गया हमारे पास dx ax प्लस dy ay प्लस dz az. Okay. Now suppose we want to talk about the differential surface area. Differential surface area. Differential surface. Okay. So how can we represent the differential surface in Cartesian coordinate system? It is represented as ds xy. सपोज मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को मिला के डिफरेंशियल सरफेस बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, dx ax और dy ay इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा. तो दिस विल बी dx into dy and ax into ay is nothing but az. You can also make a cap here in order to represent in unit vector notation. So dx dy az is equals to dxy. Similarly dsyz, तो अगर मैं इन दो एक्सिस को क्लब करता हूं तो ये बन जाएगा dy dz और ay क्रॉस az, मतलब क्या बनेगा ax कैप. एंड सिमिलरली इफ आई टेक z axis and x axis together, dszx, this will be equal to dz into dx and az cross ax is nothing but ay. So these are the three form of differential surfaces along xy, along yz and along zx. इन तीन प्रकार से आप डिफरेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ if we are talking about differential surface, differential volume in Cartesian coordinate system, differential volume, then how can we represent differential volume in Cartesian coordinate system? Simply, differential volume can be represented as differential length multiplied dot product with differential length. So you can choose, let me give the number of equation here. Equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3, this is equation number 4.
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है वो हमें डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल लेंथ के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। तो आप कोई भी डिफरेंशियल सरफेस उठाइए 2, 3 या 4 में से कोई भी एक, और 1 में जो डिफरेंशियल लेंथ है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करिए। जो ही आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए क्या पाते हैं, az डॉट ax इट विल बी 0, az डॉट ay इट विल बी 0, बट az डॉट az इज 1। लाइक सिमिलरली मैथ्स में जैसा आप पढ़ते आए कि i डॉट i इज इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k इज इक्वल्स टू 1। तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ax डॉट ax इज इक्वल्स टू ay डॉट ay इज इक्वल्स टू az डॉट az इज इक्वल्स टू 1। But similarly in cross product, as we know that I cross I is equals to j cross j is equals to k cross k is equals to null vector, zero vector। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, ax cross ax is equals to ay cross ay is equals to az cross az is equals to null vector। ठीक है, then how can we define the cross product? Cross product will only be there when I cross j, it is nothing but the k। when you say j cross k, it will be I, and similarly k cross I, it will be j। तो इसी को आइए हम ax ay az के टर्म्स में लिखते हैं। तो I को हम यदि लिखते हैं ax और j को लिखते हैं ay, तो ax cross ay will be az। सिमिलरली j को लिखा ay, k को लिखा az, दिस इज नथिंग बट ax, एंड सिमिलरली k मतलब az, I मतलब ax इज इक्वल्स टू ay। ठीक है, तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन होते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि डिफरेंशियल वॉल्यूम dv इज इक्वल्स टू ds इंटू dv, dv इज इक्वल्स टू ds इंटू dl। तो 2, 3, 4 इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे और 1 के साथ उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे dx इंटू dy इंटू dz। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया, az डॉट ax इट विल बी 0, az डॉट ay इट विल बी 0, az डॉट az इट विल बी 1। सो dx dy az। अगर मैं इक्वेशन 3 लेता हूँ, ax डॉट ax इट विल बी 1, सो इट इज dx इंटू dy इंटू dz, and remaining to ax dot ay 0, ax dot az 0। Similarly, if I take equation number 4, ay dot ax 0, ay dot ay 1, then I will get dz, dx and dy, and again ay dot az will be 0। So I can write this is the formula of differential volume is equals to dx into dy into dz. This is nothing but equation number 5, and these three are the equation of differential surfaces। इक्वेशन कौन सी, 2, 3 and 4, isn't it? And this is nothing but the differential length vector, which is nothing but the equation number 1। Is it fine? So these are very, very important in order to solve any kind of problem related to the Cartesian coordinate system। Let us take one example of this। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमें डिफरेंशियल चार्ज से हम निकालना चाहते हैं ओवरऑल चार्ज। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है लाइन चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय rho l and it is equals to dq by dl लिमिट dl टेंस टू 0। मतलब कि चार्ज पर यूनिट डिफरेंशियल लेंथ इज नथिंग बट द लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर आपको डिफरेंशियल चार्ज पता है, आपको डिफरेंशियल लेंथ पता है, और उसको आप बहुत स्मॉलर डिफरेंशियल लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस रेशो को हम लाइन चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसी को अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल्स टू rho l डॉट dl, और फर्दर हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रल कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रल कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, q बराबर इंटीग्रल rho l dl। मतलब कि लाइन चार्ज डेंसिटी का लाइन इंटीग्रल करने से हमें ओवरऑल चार्ज प्राप्त हो सकता है। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट
सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो एस से, एंड दिस रो एस इज नथिंग बट लिमिट ds tends to 0 in the bracket we can write dq by ds, dq by ds tends to 0 is equals to rho s. So from this you can write dq is nothing but rho s dot ds, और दोनों साइड हमने सरफेस इंटीग्रल कर दिया, मैं यहाँ s लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रल के साथ s लिखा है, इसका मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस इंटीग्रल, and this is equals to q is equals to surface integral of surface charge density, ठीक, मतलब इस इक्वेशन को यदि मैं अभी 1 2 3 4 हम दे चुके थे, 5 भी दे चुके थे, तो हम इसको 6 नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम 7 नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 6 से हम ये कहना चाहते हैं कि लाइन चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल हमें चार्ज देगा, सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल भी हमें चार्ज देगा। और इसी प्रकार एक और चार्ज डेंसिटी होती है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो वी विच इज नथिंग बट लिमिट dv tends to 0 dq by dv, and further we can write dq is equals to rho v dv, और दोनों तरफ हमने इंटीग्रल कर दिया वॉल्यूम इंटीग्रल, then I can also write this is nothing but, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, q is equals to इंटीग्रल rho v dv, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। यानी अब मैं अगर तीनों को बराबर कह दूं, क्योंकि तीनों से चार्ज ही मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी का लाइन इंटीग्रल करने पर, या सरफेस चार्ज डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल करने पे, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल करने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें चार्ज प्राप्त होता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लाइन चार्ज डेंसिटी का लाइन इंटीग्रल, या सरफेस चार्ज डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल हमें चार्ज देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। आइए अब हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो सपोज हमें दिया है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू 5x y स्क्वायर z क्यूब माइक्रो कूलम पर क्यूबिक मीटर। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 5x y square z cube microcoulomb per cubic meter. Then we have to calculate total charge of the system, total charge of the system if x varies from 0 to 2, y varies from 1 to 3, and z varies from -1 to 2, ठीक है। ये हमें दिया है, एक्स वाई जेड की हमें लिमिट दी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दी है, और टोटल चार्ज जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बैक स्लाइड में देखिए, आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगेगा, dv का फॉर्मूला लगेगा, dv बराबर dx dy dz, और ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से समझा है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास x y z है, और उन तीनों डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर है ax ay az। डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। सिमिलरली हम डिफरेंशियल सरफेस को तीन प्रकार से लिखते हैं, और डिफरेंशियल वॉल्यूम को भी हम लिख सकते हैं एक प्रकार से, और फिर हमने तीन प्रकार की लाइन, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को समझा है, और अब हम इस प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। तो अब आप देखिए, हम लगाएंगे फॉर्मूला q बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ आई कैन पुट रो v इज गिवन टू अस 5x y स्क्वायर z क्यूब, और dv का जहां तक सवाल है, तो अभी हमने देखे पिछली स्लाइड में dv बराबर dx इंटू dy इंटू dz अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, so we can put here dx into dy into dz. Now this is a volume integral which is a three-dimensional integral,
तो 3 डायमेंशन लग जाएंगे। x की लिमिट क्या है 0 से 2, y की लिमिट क्या है 1 से 3, z की लिमिट क्या है -1 से 2। दिस इज 5 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस। 5 इज अ कांस्टेंट, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, लिमिट 0 से 2 हो गई। वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा वाई क्यूब बाय 3 होगा, लिमिट क्या हो गई 1 से 3 हो गई। जेड क्यूब का इंटीग्रल जेड की पावर 4 बाय 4 होगा, लिमिट क्या हो गई -1 से 2 हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सो आई कैन टेक 24 आउटसाइड द इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर इंटीग्रल तो हो ही चुका है, लिमिट रखनी है 2 से 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 0 से 2 और 0 एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 0 रखूंगा तो 0, तो 4 माइनस 0 मल्टीप्लाइड विथ 3 तो बाहर ले लिया, 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस 1 का क्यूब 1, और सिमिलरली अगर मैं 2 लेता हूँ 2 की पावर 4 इज नथिंग बट 16, माइनस 1 की पावर 4 लेता हूँ, सो दिस इज नथिंग बट +1। सो आई कैन राइट हियर दिस इज 5 बाई 24 इंटू 4 इंटू 27 minus 1 is 26, 16 minus 1 is 15, so this 4 6 ja 24, ठीक है, and 3 2 ja 6, 3 5 ja 15, और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, हाँ 2 से ये 2 1 ja 2 and 2 13 ja 26, finally what I get, I will get 13 5 ja 65 and 65 5 ja 65 ja 300, 5 5 ja 25, so 325। ठीक है, नाउ अब यूनिट का सवाल है। अब मान लीजिए ये सब मीटर में दिया है हमें, ठीक है, तो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी माइक्रोकूलम में थी, माइक्रोकूलम पर क्यूबिक मीटर में थी, और वॉल्यूम से जब हमने इंटीग्रल किया तो वॉल्यूम की यूनिट क्या बनेगी मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर मेरा क्या आएगा माइक्रोकूलम। सो दिस इज नथिंग बट द चार्ज विच इज 325 माइक्रोकूलम। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So this is an example by which we can easily understand the application of the Cartesian coordinate system in the calculation of the charge with the help of volume charge density। ठीक है, सिमिलरली ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी होगी और हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और चार्ज निकालेंगे, या लाइन चार्ज डेंसिटी हमें दी होगी और हम उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे और चार्ज निकालेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। So this is all about the Cartesian coordinate system. There are so many problems given in the book. We will also provide you the tutorial sheet in which you can find some standard problem and you can solve those problems for your practice purposes. Okay, thank you very much.